So today we are going to start with the topic that is list. So before starting the topic, you all need to remind all the topic related to the array. Whatever जो भी मैंने पढ़ाई है आपको array के regarding वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, आप उसको रिकॉल कर लो अपने माइंड में तो ज्यादा इजी समझ में आएगा ये कंटेंट या टॉपिक. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि व्हाट एक्चुअली द टॉपिक टुडे. Today we are going to start with the term list in Python. First thing, list is what? List is one of the type of data structure that we use in Python programming language to identify specific values for the same variable. That means we can put multiple type of values to the single variable and retrieve accordingly. Next one, it is a mutable data structure, so we can change its location for the values and its position too. यानी दोनों जगह चेंजेस कर सकते हो, वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो और उसके पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो. That actually not possible in other data type like int, char, float, etc. and etc. In the list, we can do it. Now I received 3 messages from your side. I have to take it. Okay, it is just as attendance. Chalo, okay. Now come to the point. As I have discussed, list is a mutable data structure. So we can make many changes using this particular thing, and it is a kind of array, first thing. But we can create a heterogeneous collection of data here. That means कि आप यहाँ पे सिमिलर टाइप के लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ मल्टीपल लिस्ट भी बना सकते हो. So first, before starting the topic, I have to convey that how actually we can implement it. First point, to implement the list in the Python language, we do not need any library. ठीक है, यानी अलग से किसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है. We can call it directly from the coding ground. तो आप डायरेक्टली कोडिंग ग्राउंड में आप अपना प्रोग्राम लिखोगे एंड देन आफ्टर इट विल एग्जीक्यूटेड. तो लिस्ट आपको पॉइंट आउट कर लेना है कि लिस्ट इज व्हाट? लिस्ट इज ए म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर और array in the Python programming language. Okay, now come to the point. What actually the syntax for it? Before syntax, what are the variables, what are the operator or whatever the separator we use for declaring the list? Basically list can be created by using the function list. आप ये list function के through बना सकते हो. Using the list function you can create list. First point. Second point, to create a list we can use pair of big bracket, that is called array operator, जो मैंने पहले भी बताया आपको. array operator we can also use it. तो सबसे पहले हम लोग थिंक जान लेते हैं कि इसको बनाते कैसे है. तो फर्स्ट सिंटेक्स इज यू नीड टू यूज वेरिएबल is equal to argument. One comma argument two argument n. एंड ये बेसिकली एग्जांपल मैंने बताया है. सिंटेक्स नंबर 1 कर लो इसको. दैट एक्चुअली यूज्ड टू क्रिएट one dimensional array. One dimensional array means where the array can be created either horizontally or vertically. ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि what are the variety of array. As we can create array like this one. ये कुछ ज्यादा नहीं होगा. चलो कोई नहीं, मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ. and now it needed to range. तो ज्यादा मोटा दिख रहा था. Actually, whenever you are going to create a collection of value in number of rows, sorry, or number of column, ये रो में हो सकता है, ये कॉलम में हो सकता है, you can have it. ठीक है.
Now, if you wanted to write something here, like you wanted to store some value inside this packet, so you can use it. मान लो यहाँ मैंने 40 स्टोर किया है, यहाँ पे हमने 50 स्टोर किया है और यहाँ पे हमने 60 स्टोर किया है. It is actually called one dimensional array. As I have already discussed with you that whatever the array you are creating inside the Python language using any data type like list, dictionary or tuple or list, all the contents should be start with 0. But in some situation it is not started with 0. That is called index order. So normally when you are creating a list, you will create a 0 index for the first value, 1 index for the second value, 2 index for the third value, and third for the last value, because we have only 4 packet or 4 data to store. And at the end it store null, that is not going to be seen inside the program or the output. यानी आउटपुट आपको दिखता नहीं है. बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि array always start with 0 and end with null, and between two things you will find all the packets with value. Here one dimensional means we can create array in either row form or column form. यानी कि इसमें हमेशा हमारा एक सिंगल रो हो सकता है या वर्टिकल कॉलम हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पैकेट. ये जो हमारा पैकेट दिख रहा है जिसमें 30 स्टोर हो रहा है या 40 स्टोर हो रहा है या 50 स्टोर हो रहा है या 60 स्टोर हो रहा है. इट इज वन ऑफ द example for this type of data creation. Next one, if we have variable with multiple dimensions, that is called 2-dimensional or 3-dimensional or whatever. So we can create 2-dimensional syntax 2. एक्चुअली इसके वेराइटी है डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस के रिगार्डिंग. सेम प्रोसेस, वेरिएबल इज इक्वल टू arg1 arg2 कॉमा, अब यहीं से आप दूसरा डायमेंशन भी शुरू कर सकते हो. arg1 arg, इसका समझने के लिए ज्यादा अच्छा होगा मैं ऐसे लिखूं arg3 arg4 arg5 arg6. So we can create list using this way, and here you must have to close it, क्योंकि ये हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे ये हमारा स्टार्ट हो रहा है. तो हमें यहाँ पे देखो हमने स्टार्ट किया है यहाँ से और यहाँ से एंड किया है. सेम प्रोसेस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ को एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ को एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है. तो ऑलवेज यू हैव टू रिमाइंड इट व्हेनेवर यू आर वर्किंग विथ इट. ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देगा. तो यहाँ तक मे बी आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा ये कैसे क्रिएट हो रहा है, 2-डायमेंशनल है, 1-डायमेंशनल है, कैसे हो रहा है. तो बहुत ही सिंपल है. ये मान लो मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड हियर इज द 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ये 2 डायमेंशन हो गया. हमारे पास 2 रो हो गए हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2. सेम प्रोसेस में अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कॉलम भी क्रिएट करेंगे. एक्चुअली मैं थोड़ा सा टेक्निक यूज कर ले रहा हूँ ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए, नहीं तो आपको मैनुअली इस लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ऐसे करके यहाँ से यूज करो लाइक दिस वे. तो इस तरीके से हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, यहाँ भी हमारा जो साइज है वो हमारा 3 ही है, 0 1 2 3. दैट इज डिस्प्ले हियर. इसको आप पॉइंट आउट कर लो हर एक सेक्शन के लिए. ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 1, ये आ गया मेरा इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर 2, एंड दिस वन इज इंडेक्स नंबर 3. सेम प्रोसेस, यहाँ पे 2 वैल्यू ऐड हो जाते हैं. फर्स्ट इंडेक्स नंबर 0 फॉर द रो पोजीशन, इंडेक्स नंबर 1 फॉर द सेकेंड पोजीशन फॉर द रो. दैट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी डायमेंशन आप क्रिएट करते हो, चाहे हमारा 1-डायमेंशनल हो, 2-डायमेंशनल हो, हर एक के इंडेक्स आइडेंटिफाई होते हैं.
सेम प्रोसेस में ये आर्ग्यूमेंट 1 कहाँ जाएगा, आर्ग्यूमेंट 2 कहाँ जाएगा, आर्ग्यूमेंट 3 कहाँ जाएगा, आर्ग्यूमेंट 4 कहाँ जाएगा। तो सबसे पहली बात कितने रोज है, 2 रो वी हैव, एक्चुअली वी हैव 2 रो। I got 7 response from your side. Need to check. सर ARG के बाद ब्रैकेट क्लोज नहीं है, स्वाति कुमारी। चेक कर लेता हूँ। ARG के बाद, अच्छा यहाँ मैंने किया नहीं है, इसके बारे में बोल रहे हो ये, तो ये हमारा हो जा रहा है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 रोज हो रहा है क्रिएट, और उसमें हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हो रहा है 2 2 का स्टोर हो रहा है। खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ। अब जो भी वैल्यू यहाँ पास होंगे वो यहाँ पे दिखता जाएगा 1 बाई 1। जैसे यहाँ 1 डायमेंशन में आर्ग्यूमेंट 1 का वैल्यू यहाँ चला गया, आर्ग्यूमेंट 2 का वैल्यू यहाँ चला गया, आर्ग्यूमेंट 3 का वैल्यू यहाँ चला गया। सेम प्रोसेस में यहाँ आर्ग्यूमेंट 1 का वैल्यू यहाँ आएगा, आर्ग्यूमेंट 2 हमारा सेम स्टेज में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट 3 का वैल्यू यहाँ आएगा, आर्ग्यूमेंट 4 का वैल्यू हमारा इस पोजीशन पे आएगा। दैट मीन्स कि ये हमारा 3 रो बनेगा एंड 2 कॉलम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लिमिट है वो 2 कॉलम का है एंड रो हमारे पास 3 है। गौर से आइडेंटिफाई कर लो। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो, ये हो गया हमारा रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, ये हो गया रो नंबर 3, जिसमें हमारा ये हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा एंड दैट विल हैव मल्टीपल वैल्यू इनसाइड द सिंगल वैल्यू। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव इट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये सिंपल प्रोसेस आपको मैंने बताया है, दैट एक्चुअली यूज्ड टू क्रिएट लिस्ट इन पाइथन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द actual programming platform that is called example. Now I am going to write a program in Python to create a list with 3 value and that is going to be print on the screen. Python में बहुत ही आसान है, आपको ज्यादा इसमें दिमाग खर्च नहीं करनी पड़नी है। First you need to take a variable like I use list1, ठीक है। list1 नाम का वेरिएबल लिया, इक्वल्स टू, now put the value inside the big bracket 23 34, जो भी आप वैल्यू पास करना चाहते हो एंड लास्ट शुड बी क्लोज। नो नीड टू गिव एनी अदर सिंबल एट द एंड ऑफ द expression or the assignment of the value। and now print list1, very simple। it is one of the way to create list फॉर 1 डायमेंशनल ओनली। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करा सकते हो कि ये हमारा कैसा है, 1 डायमेंशनल है, ठीक है, 1 डायमेंशनल है ये। सेम प्रोसेस में एग्जांपल नंबर 1 कर देता हूँ इसको। सेम प्रोसेस में अगर मैं यहाँ जाता हूँ सेकेंड एग्जांपल के लिए, मैं सब कुछ समय दूंगा, अभी चैट बॉक्स में मत लिखो, जब बोलूंगा तब लिखना, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा। लिस्ट 2 इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस में मुझे 2 डायमेंशनल बनानी है, तो सेम प्रोसेस, आपको जो भी डायमेंशन बनाने हैं वो फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पैकेट के लिए डेटा आप 2 डालोगे, एक के लिए 3 डालोगे, एक के लिए 4 डालोगे, तो वैसे में डेटा स्ट्रक्चर बनेगा तो, लेकिन जो मैक्सिमम होगा उसके लिए, और बाकी हमारा नल हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 2, इसको ऐसे कर देता हूँ 1, 2, फिर से यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया। यहाँ पे जैसे ही कॉमा लगाया, इट आइडेंटिफाई दैट इट इज गोइंग टू बी 2 डायमेंशनल। अब मैंने यहाँ पे दिया 2, 3, फिर से एक कॉमा लगा दिया 4, 5 है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल डायमेंशनल डेटा भी बना सकते हो। प्रिंट, ये क्या कर दिया, ये वन नोट का प्रॉब्लम है, हर एक के बाद स्पेस जरूरी है, ये तो ऐसा ही दिखाते रहेगा। प्रिंट स्मॉल लेटर में होगा ना कि कैपिटल में, इसको आप याद रखोगे। list2 and now completed। so
इट इज अ वन ऑफ द वे। आई थिंक ये काफी आसान लग रहा होगा आप लोगों को। अगर इस सेम प्रोग्राम को रन करा के चेक कराना चाहते हो, बस इसके आगे हैशटैग लगा दो ताकि डेटा विजिबल हो सके, एंड देन आफ्टर कॉपी इट एंड पेस्ट इट। क्लियर? कॉपी किया और मैं जा रहा हूँ पाइथन प्लेटफॉर्म पे। हियर इज द पाइथन। वेट फॉर अ मिनट। हो गया? ये स्क्रीन विजिबल है सभी को जो सामने दिख रही है मेरे पास? अगर दिख रही है तो रेज हैंड कर लो। डू इट फास्ट। दिख रही है? चलो ओके। तो ये प्रोग्राम मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, इसको सेव कर लेता हूँ। एंड नाउ हियर शुड बी टेस्ट 18। रन इट। Here you can see that it is the output of the above program. Concept clear हो गया होगा? Just take a snapshot of it and raise your hand. Okay, very good. बहुत ही बढ़िया. Now boys and girls, now your turn. If you have any query related to this point, ये मैंने बस start किया है. अगर कोई point है आपको question करनी है, then now you can ask me the question through the chat box. Do it fast. Write your query in the chat box. सर अगर दो के बाद ब्रैकेट क्लोज नहीं है तो इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी कॉल्ड एज सिंटेक्स एरर। और ये मैंने जो आपको बताई है दैट एक्चुअली 2 डायमेंशनल लिस्ट, लेकिन आप इसको नेस्टिंग भी कर सकते हो, यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, चौथा लिस्ट आप बना सकते हो। यू कैन डू इट। नाउ आस्क मी द क्वेश्चन। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। प्रेरणा भारती का क्वेश्चन है सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, कोई बात नहीं है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। हियर इज द आउटपुट ऑफ द अबव क्वेश्चन। मैं अगर कहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दूं, तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया। सॉरी, इट लिस्ट 1 यहाँ से दिखेगा एंड हियर विल बी list number 2. So now you all can watch it. Where is the output ground? Output ground is here. It needed to be closed. Save it and run it. देखो आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। कोई डाउट? Any one of you, if you have any query, write in the chat box or raise your hand. If you don't have any query, then raise your hand. Do it fast. काफी आसान टॉपिक है। अगर इसी को मैं अदर लैंग्वेजेस में लाइक सी, सी प्लस प्लस या जावा में बताता तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल होते हैं, बट पाइथन में बहुत ही आसान है, आसानी से किया जा सकता है। वेरी गुड। चलो ओके, तो आई थिंक कि आपको यहाँ लिस्ट पे काम करने का स्टार्टअप आपको समझ में आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव from this one, and here is a question for you. Question: write a program in Python to create a list with odd number from 1 to 10 and show
on the screen. जल्दी से करके दिखाओ मुझे इसको, डू इट फास्ट। आपको आंसर लिखने का तरीका भी मैंने दे रखा है टू अंडरस्टैंड इट। आपको क्या करनी है, यू नीड टू क्रिएट अ पाइथन लिस्ट having value of odd number from 1 to 10. How actually you can do that? You just have to create a list for it. अब कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे? Syntax is there and example is also there. Now it's time to do it fast. Have you written or taken a screenshot of this question? Then do it. If you don't, okay, very good. Just take a screenshot of it or write the same question on your copy and answer it. Do it fast. Very good. Now, Vijay, जूम क्या लिख रहे हो ये आप? जूम तो करके दिखा रहा हूँ सर। हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन लैपटॉप। हे भगवान, ये टॉपिक मैंने कितनी बार बनाई है। चलो कोई नहीं, मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, देख लेना उसको, ठीक है। अभी बस एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट द सेम क्वेश्चन ऑन योर कॉपी। बाद में स्क्रीनशॉट बताऊंगा कैसे करते हैं। जल्दी से नोट करो आप, सेम क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। You need to create a list of odd number from 1 to 10 and show it on the screen. Example and syntax are already written there. Do it fast. चलो, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। Now who is next? Boys and girls, show me your copy fastly. Whatever you have done. Do it fast. Very good, Aman. अमन, लैंडस्केप मत करो, पोर्ट्रेट ही रहने दो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से उसको हाइड कर लो, दूसरा लोग देख लेगा। वेरी गुड अमन कुमार। ईशु प्रेमी, ईशु प्रेमी इज द सेकंड वन। वेरी गुड। बस आपने लिस्ट 1 में स्पेस दे दिया है, स्पेस नहीं होगा। अगर आपको चेंजेस चाहिए तो अंडरस्कोर लगा दो आप। डू इट फास्ट। देखो, गलतियां करके ही सीखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गलती करो। वेरी गुड, आप भी वही करो। आप क्या नाम है इनका, शिवा वर्मा। अंडरस्कोर लगा लो, लिस्ट अंडरस्कोर 1। बाकी आपका प्रोग्राम सही है, कोई नहीं रोकेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, हु विल बी द नेक्स्ट? शो मी योर कॉपी फास्टली। मिस्टर विजय। लैंडस्केप नहीं, पोर्ट्रेट करो। विजय, पोर्ट्रेट मोड करो, ऐसे नहीं दिखेगा। पोर्ट्रेट मोड कह रहा हूं, लैंडस्केप नहीं कह रहा हूं। गुड, चलो सेम। आपने आप प्रिंट को कर्सिव लेटर में लिखा है, ठीक कर लो उसको। नेक्स्ट वन, अरे जल्दी जल्दी शो करो, इतने देर में तो 2 प्रोग्राम बता देता। मिस्टर नितिन नंदन, यू हैव ऑलरेडी डन इट। वेरी गुड, हमेशा सोच से पढ़े बनाते हो आप। Why you have used for loop here? I just say that you need to create a list of odd number from 1 to 10. Then why you have created 1 to 10?
देखो हमेशा याद रखोगे, मैं बहुत छोटी बात बोलता हूँ। वेरी गुड ऋतिक, बहुत ही बढ़िया। अगर आप ट्रेन में सफर करते हो ना, तो सारी ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेन नहीं होती है, कुछ ट्रेनें पैसेंजर भी होती है। शायद समझ गए होगा नितिन। डू इट फास्ट बॉयज एंड गर्ल्स। स्वप्निल, सृजन, विकास, ओम प्रकाश, स्वाति प्रिया, नंदनी, मनीषा, सुप्रिया भारती, स्वाति कुमारी, सुभद्रा, नैन्सी, अंजलि वशिष्ठ। Show me your copy fastly. Saurabh, Kumar Saurabh, Archana Singh. Do it fast, Mr. Vikash. Very good. मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आप कर्सिव मत लिखो, कर्सिव इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑलवेज प्लेन राइटिंग में लिखो। प्रेरणा, यू आर राइट, बहुत ही बढ़िया। बस जिस केस में लिखो उसी केस में उसका आउटपुट भी शो होना चाहिए। स्वप्निल, वेरी गुड। अरे तुम लोग तो सीख गया जी, यू ऑल आर टैलेंटेड। लिस्ट वन इज इक्वल टू दिस वन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सृजन, नेक्स्ट वन इज हु, अर्नब कुमार। अर्नब, यू आर आल्सो राइट। लेकिन गड़बड़ कर दिया आपने, प्रिंट में यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया ना आपने। जो आपने लिखा है लिस्ट वन डबल कोटेशन के बाद जो हाइफन दिया है, हाइफन को कट करो और कॉमा लगाओ उसमें। डू इट फास्ट, डबल कोटेशन के बाद। हाँ बस, वेरी गुड, यू आर राइट नाउ, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अर्चना सिंह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, चलो ओके, यानी ओवरऑल मैं बात करूं, अंजलि ने अभी तक नहीं बताया है एक भी, स्वाति, राहुल, नैन्सी, अंशु, कुमारी अंजनी, निखिल राज, ये सारे लोगों ने अभी तक अपनी कॉपी चेक नहीं कराई है, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग, ये अच्छी बात नहीं है। ये कौन है, विजय, थोड़ा अप कर दो स्क्रीन अपना कैमरा, काफी नीचे से शूट कर रहे हो आप। चलो ओके, तो ओवरऑल अभी आपने आइडेंटिफाई किया हाउ एक्चुअली यू आर गोइंग टू क्रिएट लिस्ट इन पाइथन। यू आर ऑल्सो राइट स्वाति कुमारी, आपने भी अच्छा लिखा है, बस प्रिंट का पी स्मॉल कर दो, दैट इज रॉन्ग हियर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, योर आंसर इज, ऐसे करके लिखता हूँ, सिंपल करना क्या था, आपको लिखना था लिस्ट या L1, जैसे भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। L1 इज इक्वल टू जो भी आपके ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड 9, दीज आर द ऑड नंबर, एंड देन आफ्टर यू नीड टू प्रिंट इट। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था। देखो हमेशा याद रखोगे कि कुछ प्रोग्राम्स जो हम लोग बनाते हैं ना, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जितना कहा जाए उतना ही लिखो। नहीं तो क्या होगा, अगर ये मान लो कि ये प्रोग्राम 2 मार्क्स का है, ठीक है, अगर मैंने 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया है और आप इससे कुछ एडिशनल करते हो, दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज हियर, देन उस टाइम में आपको 2 नंबर बहुत कम चांसेस है मिलने का, क्योंकि आप वहां प्रोग्राम के फ्लो को बदल दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, क्रिएट अ लिस्ट विथ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो सिर्फ ऑड नंबर चाहिए, 1 to 10 नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, दैट एक्चुअली द क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू पेज,
चलो ऑलरेडी हाँ हमारे पास न्यू पेज अवेलेबल है। empty list, how actually we can create empty list in Python? So basically empty list can be created with the help of the function that is called this one, or directly use this one. So these are the two way by which you can create your list as a empty or खाली। क्लियर है? सिंपल क्या करना है, मान लो क्या वेरिएबल दिया मैंने lst1 list1 इक्वल्स टू दिस वन। तो ये क्या करेगा, और जब आप इसको प्रिंट करोगे lst1, तो आप एज्यूम करोगे कि आपकी जो आउटपुट होगी दैट विल बी द एम्प्टी। इसको मैं जस्ट कॉपी कर लिया, मैंने बंद क्यों कर दिया था उसको, जस्ट अ मिनट। आ गया, वेरी गुड। फाइल न्यू, या इसको आप डायरेक्टली भी इंप्लीमेंट कर सकते हो इस तरीके से। सिंटेक्स एरर list1 इज इक्वल टू, सॉरी, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये इस तरीके में यहाँ पे आओगे प्रिंट list1 एंड देन आफ्टर एंटर, तो ये आपको दिखा रहा है कि इट इज अ एम्प्टी लिस्ट। दैट मीन्स आपका जो करंट लिस्ट है भी खाली है। नाउ यू वांटेड टू ऐड समथिंग, तो बेसिकली उसको जस्ट मैं बताऊंगा इसके जस्ट बाद कैसे ऐड करना है, कैसे उसमें एक पार्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करना है। सेकंड प्रोसेस आपको बताता हूँ, lst2 इक्वल टू लिस्ट ऑफ empty, ऐसे कर दिया एंड देन आफ्टर प्रिंट ऑफ lst2। तो ऐसे सेंस में ये भी हमारा empty लिस्ट ही बनाता है, दैट एक्चुअली द प्रोसेस। तो बेसिकली ये empty लिस्ट मैंने बनाई है एंड नाउ आई वांटेड टू ऐड समथिंग। सो हियर इज द वे टू append in the existing list। अब ये काम कैसे होगा, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जस्ट लिख ही दिया है append is a function here, तो आपको append फंक्शन के थ्रू ये काम करना है। जैसे मान लो कि list1 is equal to blank, खाली है अभी, मैं जब यहाँ प्रिंट करूंगा तो ये हमारा list1 जो शो करेगा that will be blank, but I use list1 dot append for 23 and now print it list1। ये वन नोट का प्रॉब्लम है, ये हर बार कंटेंट को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, दैट एक्चुअली द परेशानी हियर। सो नाउ नीड टू सेलेक्ट इट and use the command prompt and enter it। लेकिन ऐसे सेंस में प्रॉब्लम ये होता है, ये इस तरह से एरर दे देता है, तो आपको हमेशा एक फाइल बना के रखनी चाहिए, या तो आप डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करो, लेकिन प्रॉब्लम होगी कि आपका प्रोग्राम सेव नहीं होगा। नाउ पुट इट हियर, कर दिया, सेव इट, टेस्ट 19, रन इट। देखो ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में हमारे पास लिस्ट क्या था, एम्प्टी था, सॉरी कहाँ चला गया, यहाँ फर्स्ट टर्म में हमारा लिस्ट क्या था, एम्प्टी था यहाँ पे, तो एम्प्टी आया। सेम लिस्ट में वैल्यू अपेंड हुआ 23, जो दैट इज द फर्स्ट पैकेट ऑफ द लिस्ट, ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट, अगर सेम प्रोसेस को मैं यहाँ फिर से दोहराता हूँ लास्ट में, और नेक्स्ट टाइम में यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, and again I am going to show the same। इसको जरा हटा दूं, नहीं तो एग्जिस्टिंग डेटा दिखाएगा। सेव इट एंड रन इट। देखो फर्स्ट टाइम में हमारे पास जो फर्स्ट टाइम में जो हमारे पास डेटा था वो हमारा था ब्लैंक,
ये वाली। सेकेंड टाइम में डेटा मैंने ऐड करी 23, थर्ड टाइम में हमने ऐड करी 20। दैट मीन्स हमने डेटा को अपेंड किया है, ऐड किया है। अब इस सेंस में अगर आप आते हो, अगर चाहते हो कि यू वांटेड टू ऐड न्यू डेटा एट योर लोकेशन, जहां आप चाह रहे हो, जैसे 23 is stored on the first packet of the current list and 20 is stored on the second packet of the current list. And if you wanted to store something on the first packet, then you can do like this: list1 dot insert गलत लिख दिया क्या, list1 dot ये ले नहीं रहा, insert 0th packet of 10 and then print it, list1, save it, run it। देखो अब इस सेंस में प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज हो गया, हमने इंसर्ट करना सीख लिया।